Hello students and welcome to my channel. Today we shall understand what are verbs, auxiliaries and modals. Now, verbs are action words. Now, auxiliaries and modals are those which help those verbs. Now, auxiliary, the other word for auxiliary is helping. Auxiliary means helping verb. हम auxiliary को helping verb भी कहते हैं. Let us see an example. Example, he was calling his friend. Now, यहाँ पे main verb is your calling and was is your helping verb. So, those verbs like was which are used with the main verb calling to complete a phrase are called auxiliaries. Now, this phrase is called a verb phrase. So, यहाँ पर main verb is calling, auxiliary verb is was. Now, auxiliary verbs are used along with the main verbs to form a verb phrase. Now, auxiliary verbs or helping verbs are divided into primary auxiliaries and modals. Now, primary auxiliary students are again divided into three kinds. They are your be verbs, they are your do verbs, and they are your have verbs. Primary auxiliaries कितने तरह के हैं? तीन तरह के हैं. एक है be verbs, दूसरा है do verbs, और तीसरा है आपका have verb. And auxiliary verb, the second kind into which it is divided is modals. Modals are like can ya could, may ya might, shall ya should, will ya would, and must. And there are something called as semi-modals like need, dare, used to, ought to. Now, students, we will understand in detail what are your primary auxiliaries and your modal verbs. And how are these individual things which they are divided into also, I will explain that also to you. Now, first let us see auxiliary verbs. Now, why do you need auxiliary verbs? First thing that should come to your mind is हम auxiliary verbs क्यों पढ़ते हैं? हम auxiliary verbs इसलिए पढ़ते हैं because we need to form a complete sentence which makes proper grammatical and logical understanding के लिए हम auxiliary verbs use करते हैं. It is used to form a complete sentence when used with the main verb. हर sentence में students एक main verb होता है और जब हम उसके साथ एक auxiliary verb या helping verb को add करेंगे तो एक verb phrase form करता है. वो verb phrase आपको बताएगा complete sentence का meaning. Meaning of the complete sentence will be told to you by the verb phrase in which your main verb and the auxiliary verb is there. They are also called helping verbs. Now, auxiliary verb comes before the primary or the main verb in a phrase. एक phrase होगा आपका जिसमें आपका main verb है. Main verb से पहले जो verb आता है उसे हम auxiliary verb कहते हैं. तो जब भी एक sentence दिया जाएगा आप पहले identify कीजिए main verb क्या है उस verb phrase में. ठीक है. अब वो verb phrase के में once you have identified the main verb, उससे पहले आप देखेंगे आपका आएगा एक auxiliary या helping verb. That is how we will identify your auxiliary verbs. Now, they are also connecting words that show the relation between a subject or object, या फिर एक subject और दूसरे subject, या फिर एक subject या दूसरा noun या verb के साथ. So, ये क्या करते हैं auxiliary verbs? They will show you the relationship. You know, every sentence has a subject, object, noun, verb. अब ये auxiliary verbs उन सबके बीच में आपको एक relation बताएगा. That is why हमें auxiliary verbs चाहिए. सिर्फ auxiliary verbs पढ़ के फायदा नहीं है. क्यों पढ़ रहे जानना जरूरी होता है. Auxiliary verb it also describes an action by someone else to do something. कोई और क्या action कर रहा है कुछ करने के लिए वो भी हमें auxiliary verbs बताता है. Now, it adds grammatical meaning to another verb in a phrase, जो कि आपका main verb है. उसके साथ अगर हम आपका auxiliary verb जोड़ेंगे तो grammatical meaning और भी enhance होगा. पढ़ के आप उसको समझ सकते हैं. Now, why do we need auxiliary verbs? To give a command, to ask a question, to make a statement. Now, auxiliary verbs are both of primary and modals. So, these both together will help you give a command, ask a question, make a statement, express our feelings. ठीक है. So, modals and auxiliary verbs ये दोनों का कुछ एक यूज है. ऐसे ही हम यूज नहीं करते हैं सेंटेंस में. एक कमांड देने के लिए या फिर परमिशन लेने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स वी यूज प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एंड मोडल्स. नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया
टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स। एक है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा है आपका मोडाल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वी हैव स्टडीड आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स स्टूडेंट्स? 3 टाइप्स, बी, डू एंड हैव। अब फिर बी को पहले पढ़ेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी बी। और प्राइमरी ऑक्सिलरी बी जो है प्रेजेंट टेंस में उसका फॉर्म हो जाता है इज, एम एंड आर में। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी बी है जो कि वर्ब फ्रेज में मेन वर्ब के साथ जुड़ के सेंटेंस को और एनहांस करता है उसका मीनिंग, उसके 3 फॉर्म प्रेजेंट टेंस में है इज, एम एंड आर। ये आपको ध्यान में रखना है। पास्ट टेंस में ये बी का हो जाएगा वॉज एंड वर्ब एंड बीन एंड बीइंग। ठीक है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी दूसरा जो है हैव है। अब हैव जो है प्रेजेंट टेंस में हैव एंड हैज रहेगा और पास्ट टेंस में हैड रहेगा। थर्ड, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हमारा तीसरा डू है, प्रेजेंट टेंस में उसका फॉर्म होता है डू एंड डस एंड पास्ट टेंस में होता है डिड। Now, we will understand in detail first of all what is primary auxiliary be. अब बी के जो वर्ब फॉर्म्स है और उसके फंक्शन क्या है हम देखेंगे। अभी जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि बी जो है उसका प्रेजेंट टेंस में कितने फॉर्म्स है? हैव, इज एंड आर। पास्ट टेंस में was and were, पास्ट पार्टिसिपल में been एंड पास्ट पार्टिसिपल और जेरंड में being। जेरंड्स में हमेशा ing आएगा। ओके, सो these forms, these verb forms and their functions you have to keep in mind। फिर आपको सेंटेंस में उसका मीनिंग कैसे यूज करते रहे ऑक्सिलरी वर्ब्स को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि प्राइमरी ऑक्सिलरी बी, डू एंड हैव के जो प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स है वो क्या क्या है। दिस वुड हैव टू मेमोराइज इट। ओके, नेक्स्ट, द वर्ब बी इज यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंसेस। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आवर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके ऊपर ही तो हमारे टेंसेस आते हैं। तो हम ये जो वर्ब बी है उस पर निर्धारित, सब्जेक्ट के ऊपर निर्धारित करके ही हम उसको यूज करें। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड नंबर मतलब वेदर सिंगुलर या प्लूरल। ओके, नाउ नेक्स्ट, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूजेस द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ बी वर्ब्स। जैसे कि हमने पढ़ा, इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। दिस जस्ट दैट बी वर्ब्स के जो एम, आर एंड इज है वो हमेशा आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि एग्जांपल, वी आर ड्राइविंग होम राइट नाउ। अब ये जो ड्राइविंग है, जैसे कि यू नो अबाउट योर कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी आता है, इसीलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब में हो गया आर। ठीक है, आर क्यों आया? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके ऊपर ये वर्ब आपका डिपेंड करेगा। राइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आल्सो सेज द सेम थिंग, डिपेंडिंग अपॉन द subject, your subject is plural we, so you can take a plural verb are। okay, so we are driving home right now, so be form का verb हो गया आपका am, are या is, जो कि डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है उसके ऊपर आपका am, are या is लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे we सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आपका बी फॉर्म का वर्ब आर के रूप में आएगा यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू गेट कंफ्यूज्ड एंड फ्राइटेंड। Now, अभी we said that the tense depends on the person and number। अब person है आपका first person, second person, third person। Now, singular first person मतलब I, singular second person मतलब you, singular third person मतलब he, she या it। ओके, अब मैं हिंदी में आपको समझाती हूँ। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सिंगुलर सेकंड पर्सन मतलब तुम, you, सिंगुलर थर्ड पर्सन मतलब वो या वह या कुछ चीज। ठीक है, वो थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम दोनों फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, अब प्लूरल में हम क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन वी। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या हो गया? यू, एंड थर्ड पर्सन रहेगा दे। ठीक है, अब उसी के हिसाब पे हम बी का जो फॉर्म है एम, आर या इज लगाएंगे। सब सिंगुलर में एम, आर एंड इज ऐसे आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन प्लूरल में तीनों में आएंगे आर। ये जो आपका ये बॉक्स में है ये वाला, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू
Understand this, then you can write your sentences grammatically correct. Now, the past continuous uses the simple past was and were. ये तो हमने simple present के लिए be के forms लिखे. अब past continuous simple past के लिए हम be का form क्या होगा? Was and were. अब स्टूडेंट्स हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि हमें कहाँ पर was यूज करना होता है एंड कहाँ पर were यूज करना होता है. तो पहला चेक हम करेंगे कि वर्ब जो है वो हमें किस पर्सन के बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन. अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो हम was यूज करेंगे. अगर सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल हुआ तो हम वर यूज करेंगे. ये टेबल भी आपको याद करना है. ये जो यहाँ पर है हाईलाइटेड पॉइंट्स, ये देखिए वॉज एंड वर के लिए कैसे यूज होता है. द मोर यू सॉल्व द एक्सरसाइजेस द मोर यू विल योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर. तो इसको एक पेपर में साइड में लिखिए एंड फिर आप आंसर्स जहाँ पे वॉज एंड वर का एक्सरसाइजेस कुछ गूगल से डाउनलोड कीजिए एंड कीजिए. आप देखेंगे जब आप रेफर करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये सब देख के आप समझ के करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. ओके. Now, the simple present and simple past tenses of be are also used as auxiliary verbs to create the present continuous and past continuous tenses which show an ongoing or continuous action. हमने जो अभी पढ़ा, ठीक है. Now, अब सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट तो ये फॉलो करता है, लेकिन जो हमारा फ्यूचर टेंसेस है वो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी से डिराइव नहीं होते हैं. जैसे कि पास्ट एंड प्रेजेंट होते हैं, फ्यूचर टेंस नहीं होता है. सो जो भी आपका फ्यूचर टेंस होगा उसमें आप कोई भी वर्ब फॉर्म बी का नहीं यूज करेंगे. ठीक है. उसमें क्या लगेगा? उसमें हमारा लगेगा मोडाल वर्ब विल. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज कीप इट इन माइंड. जो भी इंपॉर्टेंट है आप नोट डाउन करते रहिए. नाउ व्हेन टू यूज बीन और बीइंग, ये सब मैं इसीलिए समझा रही हूँ सो दैट यू कैन व्हेन यू अप्रोच योर एक्सरसाइजेस इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ द वर्ड्स बीन एंड बीइंग आर फॉर्म्स ऑफ द इरेगुलर वर्ब बी. ठीक है. नाउ बीइंग जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल में है एंड बीइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरल्ड फॉर्म में है. नाउ यू विल आस्क व्हाट आर past participle, what is present participle, what is gerund. All this has been done in detail. Now, verbs are typically considered to be irregular verbs if their past tense form and or past participle forms are not formed by adding ed or d to the end of the root form. This is the case with be, as its past tense forms are was and were and its past participle is being. Ab dekhiye, I'll give you an example. Like, for example, it is you can give an example of जैसे regular verbs आपके क्या है? Regular verbs will form they are formed by adding the past tense is formed by adding d या ed. जैसे कि reject. Reject में अगर आपने ed ऐड कर दिया तो वो rejected हो गया. So reject is a regular verb. लेकिन जैसे verbs ने जैसे eat, this is an irregular verb क्योंकि वो eated नहीं होता उसका past tense. उसका past tense होता है ate या had eaten. ठीक है. These are called irregular verbs. जो कि irregular verbs में जहां पर उनका past tense and past participle में ed और d लगा के फॉर्म नहीं होते हैं, वो कुछ और ही वर्ड होता है. ठीक है. जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं been का जो है to indicate an action that took part in the past or an earlier time. Example, Ravi has been playing for 3 hours. Here, the word been is used to refer to the action of Ravi in the past 2 hours. Ravi past 2 hours से क्या कर रहा था वो हमें बताता है been. जैसे आपने tenses में पढ़ा है has been, had been, we use this. This is the explanation for it. Once you have once you understand this concept, your tenses also will become clear. So been is always used with the auxiliary verbs has, have, had, and will have. Now, I'm sure you can correlate to your tenses. Present continuous tense, present perfect tense, जिसमें had and has and will have लगते हैं, वो इसी वजह से ही लगते हैं. ठीक है. Now, we will come over to primary auxiliary have. अब we have finished be के forms कहाँ पे होता है? अभी हम करेंगे primary auxiliary have. Now, have and has are different forms of the verb have. अब have का प्राइमरी या बेसिक मीनिंग क्या है? मतलब पोजेस करना या ओन करना. Now, have and has indicate position in the present tense.
ठीक है। ये हमें कौन से टेंस में बताते हैं? पोजीशन प्रेजेंट टेंस में। और इनका पास्ट टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? हैड। So have and has indicate possession in the present tense, describing events that are currently happening. जो अभी हो रहा है वो हमें primary auxiliary have के forms have and has बताएंगे. Now have is used with the pronouns I, you, we and they. This also you have to keep in mind. And has is used with he, she and it. ये जो green में highlighted है दो points, you have to memorize this. Now have is a conjugation of have that's used when. कॉन्जुगेशन मतलब डिराइव हुआ है। जब हम फर्स्ट पर्सन में बात करेंगे तो आई हैव, वी हैव होता है। जब हम सेकंड पर्सन में बात करेंगे यू हैव, यू हैव। अब थर्ड पर्सन प्लूरल दे हैव। ओके। Has is the conjugation of have that's used when speaking in the third person singular. He has, she has, it has. ठीक है। Excuse me. So these are the important points which you have to keep in mind. Have is used with the pronouns I, you, we, and they. And has is used with he, she, and it. And had is the past form of has and have. Okay. More you practice, the more you will understand. Now we will come over to primary auxiliary do. Now do कहाँ पे be have and do है? अब be हो गया हमारा, have हो गया, अभी हम do पढ़ेंगे. We use the primary auxiliary do for the present simple and the past simple. अब जो do है ये important चीज है कि हम इसे questions में and negative sentences में use करते हैं. Generally do is not used in positive sentences. Now जो verb do है उसके और तीन फॉर्म्स है जो कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है. ये सब फॉर्म्स आपको एक पेपर में लिखना है एंड तभी आप समझ पाएंगे कि वर्ब बी के क्या फॉर्म्स है, वर्ब हैव के क्या फॉर्म्स है, वर्ब डू के क्या फॉर्म्स है एंड उनके प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस में भी आप उनको लिखकर रखिए एंड देन एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट कीजिए. सो प्रेजेंट टेंस होता है डू या डस, पास्ट टेंस होता है डिड एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है डन. Now next we will come over to modal auxiliaries. Now are used only as a helping verb along with the main verb. अब ये क्यों यूज होता है? To express the tone or the mood of the speaker. They express attitudes like possibility या permission. Excuse me. जब हम मोडाल ऑक्सिलरीज को मेन वर्ब के साथ कब यूज करते हैं? जब हमें किसी चीज के लिए परमिशन चाहिए या किसी चीज के पॉसिबिलिटी या होने का हमें कुछ जानना है, तब हम ऐसे मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं. या जब हमें कुछ एडवाइस चाहिए या हम कुछ चीज किसी को मना करना चाहते हैं तो उस इन सब के लिए कुछ कुछ ऑक्सिलरीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं मोडाल ऑक्सिलरीज, जो कि हेल्प करेंगे मेन वर्ब के साथ जुड़ के सेंटेंस को आपको और भी समझना आसान कराते हैं. अब देखिए जो मोडाल ऑक्सिलरीज है वो ऐसे है कैन, कुड, बी एबल टू, मे, विल, शुड, ऑट टू, मे, माइट, मस्ट, कांट. ठीक है, ये सब आपके मोडाल ऑक्सिलरीज. अब ये जो एबिलिटी वाले एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वो होते हैं कैन, कुड एंड बी एबल टू. कैन जो है आपका प्रेजेंट टेंस में है, कुड जो है आपका पास्ट टेंस में है, बी एबल टू अदर टेंसेस. ये आपको यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि कौन से टेंस में हम कौन सा मोडाल ऑक्सिलरी यूज कर सकते हैं. नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, देन यू अंडरस्टैंड दैट एबिलिटी वाले क्वेश्चंस जो है वो होगा कैन, कुड एंड बी एबल टू. फिर आप देखेंगे कौन से टेंस में है सेंटेंस एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली. लाइक आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. मैं आपको अभी बता रही हूँ, बात कर रही हूँ आपसे, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस में बात कर रही हूँ. आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. ये आई कुड नहीं होगा. आई कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस मतलब मुझे 3 लैंग्वेजेस आते थे. दैट इज रॉन्ग. आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. अब कुड का हम समझेंगे व्हेन आई वाज 5 आई कुड नॉट स्विम. 5 साल जब मैं थी मुझे स्विमिंग नहीं आता था. सो आई वाज नॉट एबल टू. ये एबिलिटी वाले मोडाल ऑक्सिलरीज हैं. ओके. बी एबल टू इज अदर टेंसेस. व्हेन आई एम 20 आई विल बी एबल टू ड्राइव. मतलब मैं अभी 20 ईयर्स की हुई नहीं हूँ, वो फ्यूचर टेंस में होगा, तब आई विल बी एबल टू ड्राइव. ये हो गया आपके एबिलिटी वाले
modal auxiliaries can, could, and be able to. And what does it depend on? It depends on the tenses. Okay, two things you have to keep in mind. First, memorize ability वाले modal auxiliaries ये तीन है. उसके बाद सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस कौन से टेंस में है, उस हिसाब से आप ये तीन अप्लाई करेंगे. अगर पास्ट में है कुड, प्रेजेंट में है कैन, दूसरा टेंस है तो बी एबल टू. ओके, वैसे ही हम जिन स्टेटमेंट्स में या सेंटेंसेस में परमिशन या रिक्वेस्ट वाले हैं, ठीक है, उनके लिए मोडल ऑक्सिलरीज है कैन, कुड, विल या मे. ठीक है, अब एबिलिटी वाले अलग है जिनमें कैन कुड यूज होता है, एंड परमिशन या रिक्वेस्ट वाले भी हो सकते हैं जिनमें भी कैन एंड कुड यूज होते हैं. तो यू विल हैव टू एनालाइज द सेंटेंस फर्स्ट कि ये क्या परमिशन दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या एबिलिटी बता रहा है. उस हिसाब से आप अपना ये मोडल ऑक्सिलरीज लगाएंगे. नाउ can is a very informal way of granting permission. Could, polite way. Will आपका है neutral, neither formal neither informal. And would है polite way में. May again formal. So यहाँ पे जो है could I use the computer please, मतलब ये polite way में आप पूछ रहे हैं could I use the computer please. Can you give me a lift to the station? Can informal way में आप किसी से भी lift मांग रहे हैं तो आप ऐसे ही पूछ रहे हैं can you give me a lift to the station. Could you pass me the salt please? अगेन ये पोलाइट वे में आप पूछ रहे हैं. May I have your attention? ये जब एक गैदरिंग में कोई एड्रेस करता है किसी गैदरिंग में तो बोलता है, फॉर्मल गैदरिंग होता है वो, तो वो बोलेगा May I have your attention. Can I have your attention is wrong, क्योंकि can जो है थोड़ा इनफॉर्मल वे में हम उसे यूज करते हैं, एंड मे को हम बड़े फॉर्मल वे में यूज करेंगे. Excuse me. Now the modal auxiliaries which are used for advice are should and ought to. ठीक है, you look tired, you should have a holiday. ये एक एडवाइस दे रहा है कि आप बड़े टायर्ड लग रहे हो, मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, यू शुड हैव अ हॉलिडे. तो शुड जो है आपका मोडल ऑक्सिलरी, ये आपको एडवाइस के तौर पे एक्सप्रेस कराता है. ought to is again a formal word. What do you think I ought to do? Ought should be. Okay. ना, जहां पर सेंटेंस कुछ पॉसिबिलिटी या डिडक्शन, डिडक्शन मतलब किसी चीज का हम उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, उसको डिड्यूस बोलते हैं, एंड डिड्यूस वर्ड से आता है डिडक्शन. सो पॉसिबिलिटी या डिडक्शन के लिए यूज होते हैं मे, माइट, मस्ट एंड कांट. नाउ मे एंड माइट आर फॉर वीकर पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ चीज होने का पॉसिबिलिटी जहां पर कम हो, जहां पर वो पॉसिबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग ना हो, वहां पर हम यूज करते हैं मोडल ऑक्सिलरीज मे एंड माइट. It may rain later, it's getting cloudy. अब must वहां पर हम यूज करते हैं जहां पर हम एकदम श्योर है कि पक्का यही होगा. The phone is ringing, it must be Mary. She said she would call at 5. Can't है impossible. It can't be her. She's left her phone here. Excuse me. Now, जहां पर सेंटेंसेस में कुछ ऑब्लिगेशन होगा या मॉरल ऑब्लिगेशन जिसको हम बोलते हैं, वहां पर वी विल ऐड मस्ट, और ये होता है प्रेजेंट में. यू मस्ट बी ऑन टाइम फॉर द लेसन्स. हैव टू इज एक्सटर्नल अथॉरिटी, अदर टेंसेस. लैक ऑफ ऑब्लिगेशन, डोंट हैव टू या नीड इट. प्रोहिबिशन, मस्ट, सेंस ऑफ ड्यूटी और कांट. Now, coming over to your textbook, modal auxiliaries and verbs. We will just repeat the same thing for your understanding. Auxiliary verbs or helping verbs such as is, am, sure, will, was, were, have, has, who, does, etc. are used in conjunction, yeah, together with main verbs to express shades of time and mood. This combination of helping verbs with main verbs create phrases which are called verb phrases. Now, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में हम देखेंगे, हम समझेंगे, बाय नेक्स्ट अक्टूबर आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 10 years. In the above sentence, will have been are helping or auxiliary verbs and studying is the main. Now, English has a few helping words and when we can divide them into three groups. Forms of be, forms of have and forms of do, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है. Now, shall, will and forms of have, do and be combine with the main verbs to indicate time and was. As auxiliaries, the verbs be, have and do can change form to indicate changes in subject and time. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे he is playing football, और is playing हो गया हमारा एक
फॉर्म ऑफ बी। अब इज क्यों लगा, क्योंकि बी का तो 3 फॉर्म्स है, इज, एम एंड आर। यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, जहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। इज जो है आपका सिंगुलर वर्ब है। ओके, नाउ बी, शी डिड नॉट अटेंड द लेक्चर। नाउ डिड नॉट ये एक डू का फॉर्म है, ठीक है, और मेन वर्ब हमारा क्या है, अटेंड। शी डिड नॉट अटेंड द लेक्चर मतलब लेक्चर खत्म हो चुका है पास्ट में, तो डू का क्या हो गया, डिड नॉट। नाउ सी, वी हैव बीन बिल्डिंग आवर हाउस। अब ये हैव का एक फॉर्म है, वी हैव बीन बिल्डिंग आवर हाउस, so it is assisting the main verb building. Now D, he was planning to get together tonight. He was planning आपका है past continuous tense and the class was already instructed clearly, passive voice. इसका active voice क्या होगा, clear instructions were given to the class already. Okay, जो आपका active voice and passive voice है उसमें भी हम ये verbs use करते हैं जिनको auxiliary verbs बोलते हैं। How did you know me? Question में भी हम use करते हैं। I have not mentioned it to anyone. Negative sentence. In negative sentences also we use it. Now students, let us do your try out one from your textbook. Fill in the blanks with appropriate auxiliary verbs. अब जो blanks है उनमें हम appropriate auxiliary verbs use करके solve करेंगे। पहला है आपका dash you know how to swim. Do you know how to swim? ठीक है, अब डू क्यों, क्योंकि डू जो है हम उसको प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं एंड क्वेश्चन फॉर्म्स के लिए। सो आप जो मैं एक्सप्लेनेशन लिखी हूँ उससे भी आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पर ये डू क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डू जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है एंड क्वेश्चन फॉर्म्स। यू कैन मेक योर ओन नोट्स ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर, इट विल बिकम इजियर व्हेन यू डू योर डिफरेंट एक्सरसाइजेस। नाउ टू, डिड ईशू गो टू अमृतसर लास्ट वीक। अब यहाँ पे डिड क्यों लगा, क्योंकि लास्ट वीक है, यहाँ पे लास्ट वीक मतलब कौन सा टेंस समझ में आ रहा है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए हम कौन सा फॉर्म ऑफ डू यूज करते हैं, डिड। सो डिड इज यूज फॉर पास्ट टेंस ऑफ ऑल पर्सन्स एंड नंबर्स। 3, डैश दे मेट एट 6 o'clock क्वेश्चन मार्क हैव। क्योंकि हम जो हैव यूज करते हैं वो प्रोनाउंस आई यू वी एंड दे के साथ यूज करते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशंस में दे रही हूँ उसमें ही बहुत सारे आपके टिप्स हैं, ये सब यू हैव टू मेमोराइज, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। आई वॉज एबल टू टच माई फीट व्हेन आई वॉज यंग। तो इस ऐसे वाले सेंटेंसेस में व्हेन आई वॉज यंग मतलब पास्ट में, तो पास्ट के लिए वॉज यूज होता है। पहले तो हम चेक करेंगे यहाँ पर आई वर क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम पहले चेक करेंगे कि वह कौन से टेंस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। अब ये जो है ये है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमेशा यूज होता है वॉज, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि आई है तो वॉज, आई वॉज एबल टू टच माई फीट व्हेन आई वॉज यंग। नंबर 5, ही वॉज फीलिंग अ स्पाइडर crawling ऑन हिज arm। अब फिर से यहाँ पर क्यों लगा हमारा was and not were, because we use was for third person singular also. Now, I am playing this instrument. अब am क्यों यूज हुआ यहाँ पे, am is used when talking in the first person, it accompanies the singular first person pronoun, ठीक है। I am playing this instrument. Number 7, I looked everywhere for my shoes but I did not find them in the garden. Now students, this is a very important thing which I wanted to tell you. अब देखिए ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई शूज बट आई डिड नॉट फाइंड देम इन द गार्डन नहीं होगा, ये होगा एनीवेयर, क्योंकि जो हमारा एवरीवेयर के साथ हमारा मेल बैठता है वो है एनीवेयर। अगर होगा कि आई लुक्ड इन द गार्डन फॉर माई शूज बट आई डिड नॉट फाइंड देम इन द गार्डन, दैट वुड हैव बीन करेक्ट। बट आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई शूज बट आई डिड नॉट फाइंड देम इन द गार्डन, ये रॉन्ग है। एवरीवेयर एंड आई डिड नॉट फाइंड देम एनीवेयर, क्योंकि मैंने हर जगह ढूंढा बट मुझे कहीं नहीं मिला। सो ये क्वेश्चन ये जो इन द गार्डन है ये गलत है, यहाँ पे एनीवेयर होना चाहिए थी। ओके, नाउ नंबर 8, बॉबी डैश टू डू इट बट ही डज नॉट हैव अ कार। बॉबी ये करना चाहता है बट उसके पास कार नहीं है, बॉबी हैड टू डू इट बट ही डज नॉट हैव अ कार। नाउ ट्राई आउट 2 करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन, माइट, कुड एंड मे। अब ये जो है हमारे क्या है, ये हमारे मोडाल ऑक्सिलरीज है, ठीक है। नंबर 1, डैश यू स्पीक फ्रेंच। अब इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो व्हाट विल बी द आंसर,
कैन यू स्पीक फ्रेंच। कैन जो है आपका बताता है कुछ एबिलिटी, या आपका एबिलिटी है क्या फ्रेंच फ्रेंच स्पीक करने के लिए। कैन यू स्पीक फ्रेंच, आपको फ्रेंच आती है, सो दैट इज व्हाई वी यूज कैन। नाउ नंबर 2, इट डैश रेन सो टेक एन अम्ब्रेला। इट माइट रेन, जो माइट है वी हैव अंडरस्टूड दैट इट इज यूज्ड फॉर टू एक्सप्रेस अ वीक पॉसिबिलिटी, बारिश शायद हो सकता है, सो इट माइट रेन सो टेक एन अम्ब्रेला। नाउ नंबर 3, you dash leave now if you have an urgent work. You may leave now. अब मैं आपको फॉर्मली परमिशन ग्रांट कर रही हूँ कि यू कैन लीव नाउ इफ यू हैव अर्जेंट वर्क। नाउ नंबर 4, डैश यू प्ले द पियानो। अब यहाँ पर होगा कैन, बिकॉज आई एम क्वेश्चनिंग योर एबिलिटी। अब जहां पर एबिलिटी क्वेश्चन होता है एंड प्रेजेंट टेंस में है, मैं आपसे बात कर रही हूँ प्रेजेंट टेंस में, आई एम आस्किंग यू, देयरफॉर आई विल यूज द modal auxiliary can. Can you play the piano? Now number 5. Dash we lend her rupees 1000 for a week. May we lend her rupees 1000 for a week. ये भी आपका जो है एक फॉर्मल परमिशन लेके मैं पूछ रही हूँ। May we lend her rupees 1000 for a week? In the present tense I'm asking you. Therefore we will use may. Now, number 6. I dash go to the wedding, but I am not sure yet. I might. मेरे जाने के chances कम है, possibility weak है. Therefore, I will use the modal auxiliary might. Now, number 7. Shakun is absent from the class. She dash be ill. She could be ill. शायद वो ill हो सकती है, शायद वो बीमार हो सकती है. It is a weak possibility. Now, number 8. Children dash bring their toys to school. Children can, मतलब एक परमिशन दिया जा रहा है कि आप अपने टॉयज लेके आ सकते हैं स्कूल में। अब नंबर 9, nowadays we dash travel anywhere in the world. Nowadays we can, मतलब we are able to, तो ये ability वाला हुआ। Nowadays we can travel anywhere in the world. Now number 10, dash you open the window please. Could you open the window please, क्योंकि could जो है आपका रिक्वेस्ट के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है। Could you open the window please. Now try out 3. इट्स हॉस्पिटल, करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन आप चूज कीजिए कौन सा यहाँ पे सही बैठेगा। नंबर 1, इट्स अ हॉस्पिटल, यू डैश स्मोक हियर। शुडंट और वोंट, यू शुड नॉट स्मोक हियर। ये एक एडवाइस, शुड जो है हमें एडवाइस देता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, आपको यहाँ पे स्मोक नहीं करना चाहिए, ये एडवाइस हुआ। इसीलिए जहां पर भी एडवाइस आता है हम शुड यूज करते हैं, यू शुड नॉट स्मोक हियर। नंबर 2, नाउ Anirudh had been working for more than 8 hours. He dash be tired. He can be tired. Can क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो, देखिए, 8 घंटे से काम कर रहे हैं, शायद ये पॉसिबल है कि वो शायद टायर्ड है। नंबर 3, he dash prefer to get some rest. May या shall. He dash prefer to get some rest. अभी तक उसने रेस्ट लिया नहीं है। He shall, एक इंटेंशन है फ्यूचर में कि शायद वो प्रेफर करेगा कुछ रेस्ट लेने के लिए। सो जहां पर भी फ्यूचर हो गया, he shall. Now 4, I dash just say a few words in Marathi. I can just say a few words in Marathi. 5, the teacher said that we dash read the books for our own pleasure. Can या should? We should. यहाँ पर भी टीचर एक एडवाइस दे रही है कि हमें बुक्स हमारे खुद के प्लेजर के लिए पढ़ना चाहिए, तो एक एडवाइस के तौर पे यहाँ पे शुड हो। 6, टेक एन अम्ब्रेला, इट डैश रेन लेटर। टेक एन अम्ब्रेला, इट मे रेन लेटर। मे यूज होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, माइट यूज होता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए। 7, you dash leave small objects lying here and there. You should not. ये भी एक एडवाइस है। 8, such objects dash be swallowed by children. Can, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बच्चे इसे swallow कर सकते हैं, इसीलिए can. अब 9, dash you speak French. Can you speak French? मतलब मैं आपके पोटेंशियल को क्वेश्चन कर रही हूँ। Can you speak French? Are you able to speak French? Can you speak French? No, I can't. क्योंकि can का कंटेम्परेरी can't. ठीक है। Next 10, dash I ask you a question, can or will. Can I ask you a question? I am taking permission. To take permission by using the modal auxiliary can. Next we will do your try on 4. Fill in the blanks using the modals.
स्काई इज क्लियर नाउ बट इट डैश रेन। स्काई अभी क्लियर है बट इट माइट रेन। बारिश होने के कुछ कम चांसेस है, अभी तो क्लियर है लेकिन हो सकता है, तो एक वीक पॉसिबिलिटी, इसीलिए हम माइट यूज करें। नंबर 2, डैश ही पास द एग्जाम, कुड ही पास द एग्जाम। हम पूछ रहे हैं कि क्या वो एग्जाम पास कर सकता है, कुड ही पास द एग्जाम। ये एक हम एबिलिटी, उसकी एबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कुड ही पास द एग्जाम। नंबर 3, यू डैश बी ऑनेस्ट, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। ये जरूरी है कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, तो जो मोडाल ऑक्सिलरी नेसेसिटी या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को बताता है ये होगा मस्ट। नंबर 4, डैश गॉड ब्लेस यू मे, तो ये एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी, मे गॉड ब्लेस यू। Number 5, she was strong, she dash walk 10 kilometers. She was strong, अब was का जो है she could होगा, क्योंकि ये past tense में है, तो इसीलिए was के लिए हम जो यूज करेंगे she could walk 10 kilometers, past के लिए डिनोट करने के लिए। Now number 6, dash I go out question mark can I go out। मैं एक informally आपसे पूछ रही हूँ कि can I go out, so therefore I will use can। Now number 7, you dash not tease animals. You should not. I'm giving an advice that you should not tease animals. Number 8, we should not play with electricity. ये भी एक एडवाइस ही है, इसीलिए जहां पर भी एडवाइस वाले सेंटेंसेस आते हैं we will use the modal auxiliary should. Number 9, government dash change the pattern of exam. Government may, अब देखिए यहाँ पे may या might, why where will you use may? में हम यूज करेंगे गवर्नमेंट में, बिकॉज यहाँ पर मैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट में चेंज द पैटर्न ऑफ एग्जाम, just typically used in the present tense to indicate something that's likely to happen. Now next, I dash not help as I had no money. I could not help as I had no money. had no money मतलब पास में मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जहां पर भी had होगा वहां पे I could not help। ठीक है, इट विल नॉट बी आई कैन नॉट हेल्प एज आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट हेल्प जो पास्ट में हमें बताना है, क्योंकि एज आई हैड नो मनी पास्ट में है सेंटेंस। अब नंबर 11, एक्सक्यूज मी, यू डैश गो वेर एवर यू लाइक, यू कैन गो। मैं परमिशन दे रही हूँ या ग्रांट कर रही हूँ दैट यू कैन गो वेर एवर यू लाइक। अब यहाँ पर आप यू माइट हैव अ डाउट कि व्हाई नॉट मे, यू मे गो वेर एवर यू लाइक, बिकॉज मे और कैन का जो डिफरेंस है, कैन जो है आपको परमिशन अलाउ करता है या ग्रांट करता है, बट मे जो है इट इज यूज टू सीक और रिसीव परमिशन। ठीक है, कैन जो है मैं अपने अपने तरफ से आपको बोल रही हूँ कि आप जा सकते हो, बट मे आप मुझे पूछ रहे हो क्या मैं जा सकती हूँ, मैं बोलूंगी हाँ यू कैन गो, आप पूछोगे मे आई। समझ में आ रहा है डिफरेंस? कैन मैं अपने खुद के तरफ से बोल रही हूँ कि यस यू कैन गो। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे। नाउ 12, यू डैश वर्क हार्ड लेस्ट यू शैल फेल, यू शुड फेल। यू मस्ट, मस्ट क्यों है? क्योंकि ये फिक्स्ड डिटर्मिनेशन है, एक्सप्रेस करता है फिक्स्ड डिटर्मिनेशन कि तुम्हें हार्ड वर्क करना ही है वरना तुम फेल हो जाओगे। Now number 13, gold is very costly, we dash not afford it. Gold is very costly, we cannot afford it. Okay. Number 14, he dash be very helpful, he could be very helpful. Weak possibility of something that can happen in the future. So हम use करेंगे could. He could be very helpful. Now 5, choose the correct alternative. यहाँ पर correct alternatives choose कीजिए. Number 1, to save my life I ran fast and dash reach safely and was able to reach safely, क्योंकि past tense of auxiliary भी है was। ठीक है, to save my life I ran fast and was able to reach safely. Number 2, I don't think I shall could can be able to go, I don't think I shall be able to go, क्योंकि ये shall जब यूज होता है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है इंडिकेट करने के। ये सब जो एक्सप्लेनेशन है प्लीज इसको ध्यान से समझिए एंड याद रखिए, तब आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे सेंटेंसेस में। नंबर 3, आई वुड यूज ऑट टू बी एन एथिस्ट बट नाउ आई बिलीव इन गॉड। एथिस्ट जो होता है वो गॉड में बिलीव नहीं करते। ठीक है, सो आई यूज टू बी एन एथिस्ट बट नाउ आई बिलीव इन गॉड। यूज टू मतलब पास्ट टेंस बता रहा है, क्यों? बिकॉज नाउ आई बिलीव इन गॉड आपको बता रहा है प्रेजेंट। आई यूज टू बी एन एथिस्ट बट नाउ आई बिलीव इन गॉड। ऐसे आप सेंटेंसेस को रिलेट करके उसका पास्ट टेंस जो भी दूसरा टेंस के साथ रिलेट करके समझिए क्वेश्चन को एंड फिर अप्लाई कीजिए मोडाल ऑक्सिलरीज को।
मैंने एक्सप्लेनेशन सबका दिया है, आप ध्यान से उसको समझिए एंड और भी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए. Number 4. Shall I carry the box into the house for you? It expresses a friendly suggestion. फ्यूचर में मतलब पूछ रहा है कि शैल आई कैरी द बॉक्स इनटू द हाउस फॉर यू, एक फ्रेंडली सजेशन के तौर पर पूछ रहा है. नंबर 5. ही विल नॉट प्ले अनलेस ही इज कंपेल्ड टू. कंपेल्ड मतलब फोर्स किया जाना. सो ही मतलब देखिए, इट इज यूज्ड इन द विल इज यूज्ड इन द थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टाइम. अब ही जो है हमारा थर्ड पर्सन है. मैं आपसे कह रही हूँ कि ही विल नॉट प्ले अनलेस ही इज कंपेल्ड टू. सो विल जो है हमारा थर्ड पर्सन में यूज होता है. You must not light a match. The room is full of gas. Must not expresses logical concern. Must not. Never. Radhe used to play hockey before his marriage. अब used to जो है past tense हमें express करना सिखाता है, क्योंकि बिफोर हिज मैरिज मतलब ये हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं. तो पास्ट टेंस जहाँ पे आता है वहां पे यूज टू होता है. ठीक है. नंबर 8. ही शुड बी पंक्चुअल. अब ये एक जो है आपका एक एक्सप्रेस कर रहा है एडवाइस. Now, number 6. Now, number 6 is fill in the blanks with suitable modals and auxiliary verbs. अब टीचर जो है वो आपको बोल रहा है, डियर चिल्ड्रन, टुडे वी डैश लर्न अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट. टुडे वी शैल और विल, वी विल. बिकॉज विल जो है हम फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टाइम. ठीक है. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं. बट फर्स्ट लेट मी आस्क यू ऑल सम क्वेश्चंस. आर यू ऑल रेडी? आर यू क्यों? क्योंकि हम ये प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं विद द सेकेंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट. जो प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर है कौन है? चिल्ड्रन है. टीचर चिल्ड्रन से बात कर रही है एंड वी यूज आर जहां पर हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं. स्टूडेंट्स बोलते हैं यस मैम. देन द टीचर आस्क्स, okay, what dash you do when an earthquake strikes? What would you do? अब would जो है फ्यूचर के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए हम मोडल ऑक्सिलरी would यूज करते हैं. Trisha, मैम we dash immediately go to an open space if possible. We should. ये एक एडवाइस दे रही है कि मैम हमें we should immediately go to an open space. Excuse me. If it is not available, we dash take shelter. We must take shelter. ये एक्सप्रेस कर रहे हैं लॉजिकल कंक्लूजन किसी प्रॉब्लम के लिए, कि अगर हमने वो जो ओपन स्पेस में नहीं जा पाए तो एक लॉजिकल कंक्लूजन जो मोडाल वो बताता है वो है मस्ट. सो वी मस्ट टेक शेल्टर अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क एंड अगेंस्ट अ कॉर्नर ऑफ वॉल्स इनसाइड द हाउस. टीचर, वेरी गुड ट्रिशा. अमन, आई डैश लाइक टू एड अ पॉइंट मैम. अब अमन बोल रहे हैं आई वुड, मतलब वो पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैम आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड अ पॉइंट. आई वुड होगा यहाँ. टीचर, श्योर यू मे डू दैट. मतलब अब टीचर ने उसे परमिशन ग्रांट किया है. ठीक है. क्योंकि आप याद देखिए यू कैन क्यों नहीं है, क्योंकि अमन ने पूछा एंड टीचर ने बोला यू मे. अब अमन seek permission and the teacher gave him permission, therefore it will be may here and not can. Now Aman, when an earthquake strikes, we must stay away from fireplaces and glass structures that dash shatter, that might shatter. अब might क्यों? क्योंकि ये है एक possibility है. It expresses a possibility. So teacher says excellent. Now let us learn about disaster management. So students, with this we come to the end of your chapter, modals and auxiliaries. And I hope all the concepts are clear to you. I have given all the detailed explanations of each and every worksheet and then each and every question in every worksheet. Go through the logical reasoning which is given for each question. Try to अंडरस्टैंड कि क्यों हम ये यूज कर रहे हैं और वो दूसरा ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा. आई होप माई video is useful to you students. If you like my channel, please like, share and subscribe to it and keep the notification button on ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए and you can make use of the video. And kindly subscribe to my channel students. Thank you.